జాతీయవాద జర్నలిజానికి అసలైన వేదిక నేషనలిస్ట్ హబ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయండి. నమస్తే, వెల్కమ్ టు నేషనలిస్ట్ హబ్. ఈరోజు ఒక ప్రత్యేక అతిథితో నేను మాట్లాడబోతున్నాను. నేషనలిస్ట్ హబ్ మనము చాలా రోజుల నుంచి కూడా ఈ తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కావచ్చు, ఇటు లోక్సభ ఎన్నికల్లో కావచ్చు, అటు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఎన్నికలకు సంబంధించి కావచ్చు, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఎన్నికల ముఖ చిత్రం పైన కావచ్చు, మనం నేషనలిస్ట్ హబ్ ద్వారా అనేక విషయాల్ని, వ్యాఖ్యానాల్ని, విశ్లేషణల్ని మీ ముందుంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. అండ్ నేషనలిస్ట్ హబ్ జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని అందరికీ అందించే ప్రయత్నం చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే తెలంగాణ లోక్సభ ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఎన్ని స్థానాలు గెలవబోతోంది అండ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్ని స్థానాల్ని కైవసం చేసుకుంటుంది, బీఆర్ఎస్ పార్టీ తన అస్తిత్వాన్ని నిలబెట్టుకుంటుందా, ఈ అంశానికి సంబంధించి తీవ్రమైన చర్చ నడుస్తోంది. ఇంకొక వైపు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అధికారం మారుతుందా అన్న చర్చ చాలా స్పష్టంగా మనకు వినిపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో అసలు తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జోనల్ ఇన్ఛార్జిగా పనిచేసిన వ్యక్తి అండ్ లోక్సభ ఎన్నికలకు పూర్తిస్థాయి తెలంగాణ భారతీయ జనతా పార్టీ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూ ఎన్నికల ఇన్ఛార్జిగా ఇక్కడ పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి అండ్ తెలంగాణ లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఆయన మార్క్ చాలా స్పష్టంగా మనకు కనిపించింది. అండ్ పార్టీని పరిగెత్తించడంలో కావచ్చు, నాయకులను అందరినీ సమన్వయపరచడంలో కావచ్చు, అండ్ కార్యకర్తల్లో ఉత్తేజాన్ని నింపే విధంగా పార్టీ కార్యాచరణను రూపొందించడంలో కావచ్చు, వీటన్నిటిలో కూడా ఎక్కువగా వినిపించినటువంటి ఒక వ్యక్తి, చాలామంది మీడియాకి తెలియనిటువంటి ఒక వెనకాల ఉన్నటువంటి అదృశ్యమైనటువంటి శక్తి ఎవరంటే అభయ్ పాటిల్ అని మనం చెప్పక తప్పదు. తెలంగాణ భారతీయ జనతా పార్టీ లోక్సభ ఎన్నికల ఇన్ఛార్జ్ అభయ్ పాటిల్ గారు ప్రస్తుతం నేషనలిస్ట్ హబ్ స్టూడియోలో ఉన్నారు. అండ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఇన్ఛార్జ్ ప్రకాష్ జవడేకర్ గారితో కూడా నేను ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత ఆ టైంలో నేను చేశాను. ఇప్పుడు లోక్సభ ఎన్నికలు ముగిసిన తర్వాత ఎన్నికల ఫలితాలకి ఒకరోజు ముందు మనం ఈ లోక్సభ ఎన్నికల ఇన్ఛార్జ్తో నేషనలిస్ట్ హబ్లో మాట్లాడబోతున్నాము. వారి ఆలోచనలు ఏంటో తెలుసుకుందాము. అండ్ వారు బెళగావి, కర్ణాటకలోని బెళగావి శాసనసభ స్థానాన్ని నుంచి వారు రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు, ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. అండ్ అంతేకాదు కర్ణాటక రాజకీయాలపైన పూర్తి పట్టున్నటువంటి వ్యక్తి, తెలంగాణ రాజకీయాల్ని కూడా మధిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి అభయ్ పాటిల్ గారి అంతరంగం ఏంటో, వారి ఆలోచనలు ఏంటో, ఇక్కడున్న ఈక్వేషన్స్ ఏంటో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. नमस्ते अभय पाटिल जी. अभय पाटिल जी, ये सौभाग्य का बात है कि तेलंगाना असेंबली इंचार्ज, असेंबली चुनाव में बीजेपी का इलेक्शन इंचार्ज प्रकाश जावड़ेकर जी से मैं इंटरव्यू ले लिया. और असेंबली इलेक्शन चुनाव होने के बाद आपसे लोकसभा चुनाव के बाद आपका इंटरव्यू देने के लिए सौभाग्य मिला है. पहले तो आप असेंबली में भी आप काम किया है, विधानसभा में, और उधर तेलंगाना का जोनल एरियाज में आपका काम बहुत बड़ा है, लेकिन लोकसभा इलेक्शंस का इंचार्ज भी है. असेंबली से लोकसभा को क्या है डिफरेंस, क्या देखता है? मैं यहाँ विधानसभा का चुनाव के समय कामारेड्डी, जहीराबाद, निजामाबाद जो है वहाँ के 20 विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी था मैं. अभी लोकसभा का पूरा प्रदेश का मैं तेलंगाना का प्रभारी हूँ, चुनाव का प्रभारी. तो उस समय का और ये माहौल बहुत अंतर है. उस समय की आपको भी जानकारी है कि उस समय की राजनीति तीनों पार्टी की जो थी, और वहाँ का माहौल बहुत, यानी कि बीजेपी को इतना अनुकूल नहीं था. लेकिन आज का जो माहौल है वो बीजेपी की तरफ माहौल है, और बहुत, यानी कि जो विधानसभा में मिस्टेक्स हुए हैं उसको पार्टी ने रेखांकित करके उसके ऊपर कार्रवाई करके या उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करके एक नया रूप देने का प्रयास 3 महीने में हुआ है. तो उसका फायदा भी इस लोकसभा में बहुत मिला है पार्टी के लिए. अंतर क्या क्या है, बता सकते क्या? पार्टी एज ए पार्टी वाइज, एट द सेम टाइम जनता की तरफ से नहीं, ये बार लोगों में एक ही है कि मोदी जी को वोट देना है. ये सबसे ज़्यादा, जिसको भी आप ठेले वाले से लेके बिजनेसमैन तक सबको पूछो, समाज का हर वर्ग या हर तबके का जो भी आदमी है, कि वो चाहता है कि एक सक्षम भारत बनने के लिए जो नेता चाहिए है. और पिछले 10 साल में जो मोदी जी का काम हुआ है, और उसके लिए फिर एक बार उनको मौका देना चाहिए. और जो बचे काम हैं, जैसे POK है या कॉमन सिविल कोड है, ऐसे बहुत सी चीज़ें जनता के मन में, वो होना चाहिए. तो फिर मोदी जी आना चाहिए. और 10 साल में भी बहुत काम हुआ है, तो ये मन में है.
तो इसलिए जनता मन बना ली है और सब जगह पे मैं पूरा प्रदेश इस समय 17 लोकसभा में घूमा हूँ, तो पूरे यहाँ पे एक माहौल बना है कि मोदी जी को फिर लाना है तो या इस बार बीजेपी को यहाँ पे तेलंगाना में चुनना है। तो ये एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है। और दूसरा जो है कि जो प्रदेश में सरकार रही, एक बीआरएस की सरकार और नई सरकार कांग्रेस की, तो ये विधानसभा के लिए चुना था इनको। तो ये 3 महीने में 4 महीने में वो क्या किया है लोगों को वो भी पता है, तो इसके बारे में भी अपना राय व्यक्त करने के लिए एक मौका मिला है लोगों को। लेकिन ज़्यादातर इस चुनाव में नेशनल मुद्दे छाए रहे हैं और नेशनल लीडरशिप किसके हाथ में जाना है, या मोदी जी के हाथ में या राहुल गांधी जी के हाथ में, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस हुआ है चुनाव। ओके, बीजेपी का थोड़ा इंटरनल इश्यूज में भी मैं थोड़ा जानकारी हूँ, मैं मुझे भी बीजेपी का 2-3 कार्यकर्ता और नेता लोग बता रहे कि अभय पाटिल बोले तो अभय पाटिल भयपడుతున్నాడు, ये तेलुगु में भयपడుతున్నాడు बोले तो अभय पाटिल जी डरा रहे हैं, ऐसा बहुत थोड़ा प्रचार है। इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? नहीं, मुझे पहले पता नहीं था। मैं आके 10-15 दिन के बाद में एक 2-3 आर्टिकल आए, ऐसे लोग मुझे बताया कि मैं ऐसे ऐसे है, और कुछ टीवी चैनल में 1-2 चैनल में आए रहेंगे। हाँ, सच है कि जो काम नहीं करते उसके लिए तो भय होना चाहिए और जो काम करता है उसके लिए तो अभय होना चाहिए। करेक्ट। और मेरा एक ही काम है कि जो काम नहीं करेंगे तो उनको क्या काम है यहाँ पे। हम तो काम करने के लिए आए हैं सब लोग, जो कार्यकर्ता से लेके हर पद जिसको जिम्मेदारी दिया है तो वो काम करना चाहिए। और हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी जैसे नेतृत्व में हमको काम करने का मौका मिला है। तो ये सौभाग्य को प्राप्त होने के बाद में हम काम नहीं करेंगे, सिर्फ पद पे बैठ के हम काम नहीं करेंगे, सिर्फ पद लेके विजिटिंग कार्ड प्रिंट करके अपना खुद काम करने का जो प्रयास कुछ लोग करते रहेंगे, तो उनको लगता है भय, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम है जो प्रभारी के नाते जो काम करना था लोकसभा के चुनाव में, जो पार्टी ने दायित्व दिया था, जो पार्टी ने जो काम करने का एक एक्शन प्लान बनाया था, उसी हिसाब से काम करने का प्रयास किया हूँ। उसमें आप जैसे कह रहे हैं, कुछ मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ लोगों को भय लगा है, तो जो काम नहीं करते उनको लगा रहेगा। भाई तो अच्छा है, ऐसे सोच नहीं, क्या है कि पार्टी में कोई भी दायित्व है, जो कार्यकर्ता से लेके प्रदेश स्तर तक हर कार्यकर्ता हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और हर काम उसको जो भी सौंपा जाता है वो इम्पोर्टेंट काम रहता है। तो वो काम करते गए तो पार्टी भी बढ़ेगी और जनाधार बढ़ेगा। तो बिना अभी देखो कोई भी नेता समझो कि अपने कोई फॉलोअर को कहाँ पोस्ट दिला सकता है, लेकिन पोस्ट दिलाने के बाद में वो कार्यकर्ताओं को परफॉर्मेंस खुद करना पड़ेगा, नेता नहीं कर सकता। तो ये समझना चाहिए हर आदमी को कि जिस दिन हमको पोस्ट मिलता है या दायित्व मिलता है तो परफॉर्मेंस हमको करना चाहिए। जब भी जो भी परफॉर्मेंस करेगा जनता उसको आइडेंटिफाई करेगी। यस, करेक्ट। एंड एक्चुअली देयर इज नो डिस्प्यूट इन stating like this Lok Sabha election is Modi elections. मोदी मानिया है, अभी तो पूरा देश भर मानिया है। लेकिन असेंबली का चुनाव है तो लाइक विधानसभा में तो थोड़ा रीजनल इश्यूज, रीजनल एस्पिरेशंस थोड़ा रहता है। असेंबली में इंटरनल रिफ्ट है बीजेपी में, इंटरनल जो कोऑर्डिनेशन मिस हुआ है, ऐसा प्रचार हो गया ना इस टाइम पे। इंटरनल कोऑर्डिनेशन नहीं है, लीडर्स में डिवीजन आ गया है। आई मीन एंड वो जो अध्यक्ष थे उस टाइम पे उनको चेंज किया है, वो भी प्रभाव किया है। ऐसा थोड़ा 2-3 चीजें है ना। असेंबली चुनाव में जो मुद्दा है, जो प्रॉब्लम्स है, उनको कैसे सॉल्व किया, अभी इधर सॉल्व किया कि नहीं? नहीं, जो भी मुद्दे बनते हैं ना, ये विपक्ष नेताओं ने ज़्यादातर इसको, मेरी जितनी जानकारी है, या मैं 20 विधानसभा का प्रभारी था उस समय, तो वहाँ तीनों जो कामारेड्डी, जहीराबाद, निजामाबाद जो परिसर था, उसमें मेरी जो जानकारी थी और जानकारी मिलती थी और माहौल जो था, एक बनाने का प्रयास हुआ
लेकिन एक तो मानना पड़ेगा कि जो भी हमको आरोप करता है उसको उत्तर देने का काम जो था जिस स्तर पे होना चाहिए था वो नहीं हुआ उस समय। ओ हाँ, ये मेरा Actions खुद का में। आकलन है। क्योंकि जब राजनीति में है तो आरोप होना सहज है, और आरोप नैरेटिव सेट करना अपोजिशन का काम ही है। हमारे पार्टी के खिलाफ है या नेता के खिलाफ, तो उसको समर्थ रूप से गलत चीज़ें जो आ रही है उसको ये गलत है ऐसे बोलने का, इसको प्रूव करने का काम हमारी तरफ से उस समय हुआ नहीं है, ऐसे मेरा खुद का आकलन है। क्योंकि ऐसे जो डिफरेंसेस बहुत से थे, ऐसे कुछ मुझे तो दिखा नहीं उस 20 या 30 दिन का मैं यहाँ पे रहा हूँ। लेकिन ज़्यादा जो लोग बात करते थे उस विषय पे, उसको हम समर्थ रूप से उत्तर देने का काम नहीं हुआ, ऐसे मैं खुद का मेरा एक आकलन रहा है। मैं सुना कि 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो डिवाइडेड लीडरशिप है ना, तो थोड़ा बहुत कैंडिडेचर के बारे में थोड़ा अगेंस्ट लीडरशिप है ना, उनको आपको अब जोड़ दिया, ऐसा मैं सुना है। माधवीलता जी और ये राजा सिंह के जो यूनाइट करने के लिए प्रयास आपने किया है, ऐसा सुना है, सही है? मैंने सबने किया है, मेरे तो दायित्व था प्रभारी, तो मेरे को हर आदमी से बात करना था। अच्छा। जो भी लोकसभा की टिकट जितने लोग चाहते थे और जिनको नहीं मिला, बहुत से लोगों से मैं खुद बात किया हूँ, और कुछ प्रदेश नेताओं से भी बात करवाया है, कुछ राष्ट्रीय नेताओं से बात करवा के उनको काम पे लगाने का, या उनका जो भी उनके सोच है उसको सही है पार्टी की दृष्टिकोण को बता के उनको काम पे लाने का प्रयास हुआ है। निश्चित रूप से 30-35 लोग ऐसे थे कि वो टिकट चाहते थे या नहीं मिला उनको, तो कुछ नाराज थे या कुछ काम पे नहीं है, तो उनसे बात करके ज़्यादातर लोग पार्टी के काम पे लगे, और उसका असर भी हमको इस चुनाव में रिजल्ट के बाद में आपको नज़र आएगा। तो मेरा इतना ही नहीं है कि जो भी प्रभारी रहता है उसका काम ही है कि चुनाव के समय जो नाराज होता है उसको बात करना है, उसको फिर काम पे लगाना है, कि उसके बाद भी सुनना है कि वो क्यों नाराज़ है। क्योंकि हर आदमी का एक दृष्टिकोण रहता है, वो ऐसे ही नाराज नहीं होता है। तो वो नाराज़गी क्या है वो सुनने के बाद में हमको भी एहसास होगा कि कहाँ पे गलत हुआ है, सही हुआ है क्या। हर आदमी का दृष्टिकोण अलग रहता है, कि लेकिन एक बार उससे बात करने से उसको भी लगता है कि मेरा बात सुनने वाला कोई तो है। और कुछ ऐसे बातें हैं कि जो जो कहा है वो सही भी है, उसको ठीक करने का प्रयास भी हुआ है पार्टी की तरफ से, तो काम अच्छा हुआ है। वेरी नाइस, काम अच्छा हुआ है। यस सर, एक्चुअली आई वांट टू आस्क यू वन मोर। कर्नाटका इलेक्शंस में कांग्रेस जीत के सरकार बन गया, तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार आ गया। कर्नाटका में जो गारंटीज थे ना, उनको रेप्लिकेट किया है तेलंगाना में भी, सो इधर भी कांग्रेस सरकार बन गया। अब तेलंगाना असेंबली इलेक्शंस में जोनल इंचार्ज थे, अभी लोकसभा का इलेक्शन इंचार्ज बन गए। कर्नाटका और तेलंगाना का ये कांग्रेस सरकार के बारे में आप क्या बताते, एंड इनको कैसे ओवरकम करके बीजेपी जीत सकते हैं? लोकसभा का चुनाव के बारे में कर्नाटक का भी मैं आपको थोड़े में आकलन बता दूंगा। कर्नाटक में इन लोगों ने 5 गारंटी दिया है, और उसी के भरोसे ये लोग अभी जी रहे हैं कि हमारे 20 सीट आएंगे। हमने बस फ्री किया है, हर महिला को 2000 रुपये दे रहे हैं, हर कॉलेज स्टूडेंट को पैसा दे रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, ऐसे बहुत से वादे किए हैं, और कुछ उन्होंने इम्प्लीमेंट किया अभी। ये लोकसभा तक की करेंगे वो मुझे वो भी पता है। लेकिन चुनाव का रिजल्ट जब आप देखेंगे तो इसके ऊपर नहीं होट आने वाले, क्योंकि बहुत से आप जैसे चैनल लोगों ने इंटरव्यू लिया जो बस में जा रहे थे महिलाओं का, तो उन्होंने कहा है कि सीधे नहीं, ये बार हम मोदी को ही वोट देंगे, क्योंकि नेशनल इशू है। तो राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में हमको क्या करना है उसको सोच के हम निर्णय लेंगे, ऐसे बहुत से जगह पे हुआ है। और कर्नाटक का मैं आज ही बता रहा हूँ कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि उनकी 20 सीट आएंगे। तो मैं आज ही कह रहा हूँ कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में कर्नाटक में 20 से 22 सीटें आएगी, जनता दल की 2 सीटें आएंगी। कांग्रेस 4 से आगे नहीं बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 6 सीटें उनको मिल सकती है, उससे ज़्यादा तो मिलेगी नहीं है। ओके। हाँ, तो इसका इफेक्ट वहाँ पे तो है। तो ये था, यहाँ पे तो मेरा जानकारी है सिर्फ अनाउंस हो गए स्कीम्स, इम्प्लीमेंट नहीं हुए।
उसका भी नेगेटिव एक है। और दूसरा, मैं जहाँ पे घूम रहा था, मैं प्रभारी के नाते यहाँ पे रहूँगा, लीडर को पता रहेगा कुछ कार्यकर्ताओं को, लेकिन जनता को तो मेरा कोई पहचान नहीं है। मैं हर गांव में जहाँ भी जाता था तो सब्जी मंडी में, ऑटो में या चाय के ठेले में जाके पूछता था कि क्या माहौल है। उन लोग पूछते आप कौन है, तो मैं बोलता कर्नाटका में पत्रकार हूँ, तो जानकारी लेने के लिए आया हूँ। लोग बताते थे कि नेशनल इशू पे मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है, उसी के बारे में। कहीं पे मुझे सुनने में नहीं आया कि प्रदेश के नेतृत्व के बारे में या इसमें हम इसके बारे में हम वोट डालेंगे, गारंटी दिया है, ये कर रहे हैं। कि उल्टा इनके खिलाफ ही लोग बोल रहे थे कि किसान के लिए करते हैं, बताया वो किसान के लिए कुछ नहीं किया। तो ये भी इनको इफेक्ट हुआ ऐसे मुझे लग रहा है। आप कितने सीट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर लोकसभा में? मेरा खुद का आकलन है, मैं पूरे 17 लोकसभा का मैं खुद प्रवास किया हूँ, हर सदर लोकसभा का मैं रिव्यू किया हूँ, और उसके बाद में भी मेरा प्रवास रहा है। तो मेरा जो है 9 से 11 तक 100% हमारी सीटें आएंगी ये बार। नंबर 1 पार्टी हम ही बनेंगे निश्चित रूप से। मेरे ख्याल से 9, कम से कम 9, 11 तक हम पहुंच सकते हैं। ओके। और कांग्रेस सेकंड में रहेगा, बीआरएस को कुछ सीट मिलेगा कि नहीं? बीआरएस तो मेरे ख्याल से अस्तित्व खत्म हो रही है उसकी। अच्छा, हाँ। तो मेरा जो आकलन है, जहाँ जहाँ मैं घुमा हूँ, बीआरएस तो मेरे ख्याल से अभी इस चुनाव में तो 80% खत्म हुई है। रिजल्ट आने के बाद में बीआरएस मेरे ख्याल से पूरा खाली हो जाएगा। अच्छा। अगले विधानसभा चुनाव में बीआरएस चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, ये अस्तित्व की उनकी एक माहौल बनने वाला है। कर्नाटक में क्या है? कर्नाटक में तो ये बार मैं वही चाहता हूँ कि पिछले बार हम 25 थे, ये बार 20 से ज़्यादा हमारी सीटें आएंगी, और हमने अलायंस कर लिया है जनता दल के साथ, तो उनकी 2 सीटें तो मिनिमम आ जाएगी, तो 22 तो हमारे निश्चित रूप से आएंगे। तो हमारा आकलन है बीजेपी 22 आ सकती है, 20 से 22 और वो 2 तो 24, तो 4 सीटें में कांग्रेस जाके बन। लेकिन वो गारंटी और इतना मेरे ख्याल से पहली बार कर्नाटका में लगभग 28 सीटों में 16 या 20 तक मिनिस्टर का बेटा, मिनिस्टर का भाई, मिनिस्टर की बीबी या मिनिस्टर की बेटी, ऐसे सब लोगों को उन्होंने टिकट दिया है। हर चुनाव में मैं तो यहाँ कहना उचित होगा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, नॉमिनल खर्चा होता था लोकसभा में, बूथ के पैसे बांटे जाते हर पार्टी के, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या जनता दल। ये बार कांग्रेस वालों ने हर लोकसभा में 100 करोड़ रुपए खर्चा किया है, 100 करोड़ रुपए। इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है कि मोदी जी को जिताना है, मोदी जी को वोट देना है। सिर्फ मोदी जी का एक ब्रांड बना नहीं है, उनका काम का ब्रांड बना है, और उनका जो काम करने का तरीका है, लोग बोलते रहते हैं कि उनका संवाद से, काम के तरीके से, उनका रहन सहन, उनका फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हर आदमी को एक एक बाहर आए कि देखो कि आज तक जो उन्होंने काम किया पिछले 10 सालों में, उसका भी आकलन हर सामान्य से सामान्य आदमी, क्योंकि आपका सोशल मीडिया इतना पावरफुल है और आप जैसे, तो हर आदमी के पास आज जानकारी है, पहले नहीं रहता था। तो जैसे आप हर इंटरव्यू में देखते हैं तो गांव की महिला भी मोदी जी क्या क्या काम किया है बता रही है। तो इससे एक माहौल बना है, पूरे कर्नाटक तेलंगाना इतना नहीं है, पूरे देश में माहौल बना है मोदी जी के बारे में। एक्चुअली तेलंगाना में विधानसभा इलेक्शंस के पहले, एक 6 महीने के पहले, कर्नाटका इलेक्शंस का रिजल्ट्स के बाद, कर्नाटका में जो बीजेपी का सरकार बदल गया, वो कांग्रेस सरकार आ गई ना, उसके बाद तेलंगाना में ग्राफ बीजेपी का कम हो गया, कांग्रेस का बढ़ गया, ऐसा ही इधर माहौल दिखते थे। लेकिन बीजेपी सरकार तेलंगाना में बनने के लिए कुछ बदलना चाहते हैं क्या? कुछ पार्टी में चेंज होना है क्या? कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चीज़ें बदलने का है क्या? लेकिन ऐसे ही सेम स्पिरिट से जाना है क्या? आप एक इलेक्शन इंचार्ज के नाते आप क्या बताते?
नहीं, अभी तो ये कहना उचित नहीं है कि अभी सरकार बनने के लिए। अभी 4.5 साल है, बहुत सी चीजें हैं हाँ। आने वाले, लेकिन संगठन की दृष्टि से हमको और काम करना चाहिए। ओके। हाँ, यानी कि बूथ से लेके प्रदेश तक हमको बहुत काम करना है। इसमें सब चीजें आप आकलन कर सकते हैं। आई थिंक आप ही इलेक्शन के बाद पूरा तेलंगाना का इंचार्ज बन के इधर आने वाला है, ऐसा भी थोड़ा जानकारी है? ठीक है, नहीं है, मेरे को इसमें इतना नहीं। ही दायित्व दिया पार्टी ने, अच्छी बात और सर। खास करके नड्डा जी और संतोष जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये दायित्व दिया था मुझे, और मुझे भी अनुभव भी मिला, मुझे बहुत सी चीज़ें यहाँ पे सीखने को भी मिला, और मेरा काम भी कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं आया। लेकिन पार्टी ने जो काम किया है, तो मैं चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मैं 100% उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया हूँ। ओके, सो अभय पाटिल जी, व्हाट इज योर टेक ऑन तेलंगाना पॉलिटी एज ऑफ नाउ? बीआरएस को पूरा खत्म करके बीजेपी बढ़ेगा क्या? और कांग्रेस और बीजेपी एंड बीआरएस एक ट्रायंगुलर फाइट में व्हाट वुड बी द स्ट्रैटेजी? व्हाट शुड बी दैट स्ट्रैटेजी इफ पॉसिबल? इफ ऐसा ही एक एनालिस्ट के जैसे बताइए प्लीज। मेरा जो खुद का आकलन है, या मेरा खुद का जो अनुभव है, या मेरा जो सोच है, किसी को कम करके हमको बढ़ने की इच्छा नहीं है। ओके। हमारा काम का जो स्तर है वो हर समाज के हर तबके तक जाना है, तो हमारा काम बढ़ना चाहिए। और जो अभी काम है वो बहुत बड़ा है अभी, यानी कि पिछले 10 सालों में तेलंगाना बीजेपी में क्या था, अभी क्या है, और हमको ज़्यादा नीचे तक जाके काम करना है, और हमारा संगठन का विस्तार होना चाहिए। इससे हम अपने आप बढ़ सकते हैं। तो हम जैसे बढ़ेंगे तो कौन कौन अपने आप खत्म हो जाएगा वो जनता तय करेगी, लेकिन हमको किसको खत्म करके हमको आगे नहीं बढ़ना है, मेरा आकलन है। हम खुद काम करने लगेंगे तो अपने आप सब घर पे जाएंगे। Being Lok Sabha in charge of Bharatiya Janata Party, do you want to give any message to your cadre or even for the public, Telangana public के लिए? मैसेज ऐसा नहीं है, लेकिन जो धन्यवाद कार्यकर्ता, जो हमारे कार्यकर्ता है, बूथ से लेके जो बूथ का अध्यक्ष है या पेज प्रमुख है से लेके हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों तक, मेरा कहना इतना ही है कि हमको जो काम मिला है, जो पद मिला है, उसका उपयोग पार्टी के काम के लिए हमको करना है, और पूरा समय, जितना समय हमारे पास पार्टी को देने के लिए है, उतना समय देके जनता का जो समस्या है वो निर्माण करने के लिए नहीं है, निवारण करने के लिए हम काम करने लगेंगे। निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అభయ్ పాటిల్ జీ, థ్యాంక్స్ అ లాట్. धन्यवाद. సో చూసారు కదా, అది అభయ్ పాటిల్ గారితో ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ. వారు చాలా తక్కువ మాట్లాడుతున్నారు, కానీ ఎక్కువ పని చేస్తున్నట్టుగా కనబడుతోంది. నిజానికి చెప్పాలంటే తెలంగాణ లోక్సభ ఎన్నికల్లో 17 లోక్సభ స్థానాల్లోనూ చిన్న ఇష్యూ దగ్గర నుంచి పెద్ద ఇష్యూ వరకు చాలా అంశాల పట్ల పూర్తి అవగాహన కలిగినటువంటి వ్యక్తి. అండ్ అక్కడున్న ఇష్యూస్ని సరిదిద్దడంలో కావచ్చు అండ్ సమన్వయపరచడంలో కావచ్చు అభయ్ పాటిల్ గారిది ప్రత్యేకమైన శైలి ఉంది అనేది భారతీయ జనతా పార్టీ శ్రేణుల నుంచి, నాయకగణం నుంచి కూడా చాలా స్పష్టంగానే వినిపించింది. సో అటువంటి అభయ్ పాటిల్ గారి ఆలోచనల్ని మీరు విన్నారు. అండ్ వారి ఆలోచన ప్రకారం అయితే లోక్సభలో 9 నుంచి 11 సీట్లు ఖచ్చితంగా తెలంగాణలో బీజేపీకి వస్తాయి అనేది వారి అంచనా. అండ్ కర్ణాటకలో కూడా కనీసం 20 సీట్ల పైననే భారతీయ జనతా పార్టీ సాధించగలుగుతుంది అనేది వారి ధీమా కనబడుతోంది. సో చూద్దాం ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది. అండ్ ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ ఖచ్చితంగా తెలిపే అవకాశం ఉంది. అండ్ భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలోకి రావాలంటే ఏం చేయాలో చాలా స్పష్టత కలిగినటువంటి అభయ్ పాటిల్ గారు ఇంకా ఎటువంటి పొజిషన్స్లోకి వెళతారు అండ్ ఏ విభాగాల్లో పనిచేస్తారు, ఎక్కడెక్కడ ఏ రాష్ట్రాల్లో ఆయన కీలకమైన భూమిక వహిస్తారు అనేది కాలం నిర్ణయిస్తుంది. చూస్తూనే ఉండండి నేషనల్ స్టాప్, మనసా వాచా కర్మణ, దేశహితం కోసం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, 10 మందికి షేర్ చేయండి. అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి. నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగునాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి. ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.